into treasure, a plastic-free campaign. I would like to introduce you to the institute. The seed in the form of Rohini Educational Society, soon to provide quality education in 1983, has flourished with trees spreading its branches and stems of education far and wide. Through its concerted efforts, the society has created several institutions of known standards and repute for imparting quality education right from the kindergarten stage to the master level under the brand name Geeta Ratan. Geeta Ratan International Business School GIBS was established in the year 2004. It is a self-financing ISO 9001, 2008, 14001, 2015 and 50,001 and 2018 Census University, Delhi, and approved by all the India Council for Technical Education, AICTE, Ministry of Education, Government of India for Technical Courses, and Bar Council of India for law courses. The institute conducts various courses, namely BBA, MBA, both first and second, for both second and first shift, BLLB integrated and BLLB integrated. This year, we have added another further to our CAP by acquiring two new courses, namely MBA and LLM. GIBS has been graded A by the National Assessment and Accreditation Council in the third cycle. GIBS has been rated A+ by the State Field Regularity Committee of Field Committee at Government of NCT of Delhi. GIBS has been rated highest grading A by the Joint Inspection of Committee of Government of NCT of Delhi and GJSIT University since 2013 till date. GIBS has been rated grade A by the Academic Audit Cell of GJSIT University since 2011 till date. As one of the national capital leading business schools, GIBS brings together people's cultures and advice from around the corner to change lives and transform organizations. The institute is an ideal setting for learning, a diverse community knit together by its physical environment as well as by its commitment to the highest standards of excellence, integrity, free expression and inquiry. The campus boasts state-of-the-art infrastructure, facilities and resources. प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना का अब सब मिलकर जो संकल्प, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का सिर्फ यही एकमात्र विकल्प. The NSS unit of GIBS is organizing a session and we take pride in announcing our guest speaker, Ms. Sangeeta Dayal ma'am. She is currently positioned as the secretary in RWLD, Block Saket. She is the founder of EcoWing Trust, which is working on an initiative to work for waste management and segregation. She has done history honors from Indraprasth College, Delhi University, and taught among 90 students in the textile design course from JDM College in 1996. She was the director of a firm that deals with corporate gifts. Apart from this, Ms. Sangeeta ma'am is also the founder of a club of 90 ladies. We are immensely proud to announce that her session will be a great awareness for today's day-to-day challenge for the environment. With the interactive session and campaign, we hope to spread awareness of the environmental issues that world is facing. She is working with the colleges, schools, communities and universities for the great cause. She has been awarded by respected LG, MCD and other organizations. We welcome you ma'am. Now I would like Director Sir to for the presenters plans happening to our chief guest as a gesture of gratitude. It's a proud moment to be with the students. Now we would like to request Sangeeta Dayal ma'am to embrace the audience with her words. Good afternoon everyone. I extend my sincere gratitude to Director Sir and the esteemed faculty present here and all the students who are here for the part of the workshop. And this is, it's a great moment that the GIBS organized this event for the environment. And we are very happy to participate with you all. See, it is a participation. It's not that I'm here for the lecture. I'm here to work with you all for the round the year. And it's our
it's a great moment that the students are here. 3 cheers for yourself, please. We always say, जो हम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. We have spent our life. If I am more than 50, so हमारी जिंदगी निकल चुकी है. Now what we are giving to our students, our children, is what you will achieve with your work. So अभी मैं शुरू करती हूँ what we are doing. Ecowings is working for sustainability, for the waste management and disposal of the waste, and we are working for no spitting. छोटी छोटी चीजें मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि एक सेकेंड, the bottle. Can somebody get the bottle at the gate? Of waste, we are promoting disposal of waste. What we are generating? Is there someone who is generating wet waste and dry waste separately? कोई यहाँ पर है? Okay. So in next 15 minutes, I will tell you how we can make eco bricks, how we can do segregation of waste. I think you must have attended some other, events also regarding this. क्या आप लोगों ने किया है कभी? जो students यहाँ बैठे हुए? Okay, you have done that. Sorry? Is there anyone? So Ecowings conducts awareness drives with the communities, within the temples, within the markets. We do plogging drive. Does someone know about plogging drive? जो ऑर्गेनाइजर है वो नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा. Have you heard the word plogging? P-L-O-G-G-I-N-G. मैं कैसे प्राइज दूंगी आज? See, we have prepared a question here just to, so the plogging is pick up the waste where you are sitting, where you are walking, where you are. So we will be doing the plogging drives in near future with you. So these are the small activities which I am sharing with you all in the beginning. Then we will come to the main making of eco-bricks. Then eco-bricks is segregating the plastic, filling the plastic bottles with the clean and dry plastic. So that is called eco-brick. किस को मालूम था पहले eco-brick के बारे में? Anyone to raise hand? Okay. Eco-brick अगर आप Google करेंगे, so there are organizations who are making washrooms with this, who are making walls with this, furniture with this. The eco-brick is a bottle filled with plastic, waste plastic, dried and clean, and that becomes a brick. Brick means ईंट. आपने एक ईंट का दाम किसी को पता है? आज की डेट में एक ईंट कितने की मिलती है? अगर आप कुछ बना रहे हो, कोई घर बना रहे हो, किसी को मालूम है एक ईंट की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए. The price goes to him. What's your good name, please? Neeraj Gupta. Neeraj Gupta. Natural pen. So this is a pen made without wood, made without metal. इसमें बाहर पेपर. तो आपने एक प्लास्टिक कम किया. Ecowings जो काम कर रहा है, we are working on sustainability also. So in next time we will be doing questionnaire और उस पे बच्चे कुछ थोड़ा बहुत prepare करके आएंगे. So we use empty bottles which we will be making right now, और आपके कॉलेज के लिए हम कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. Then we are working on no spitting. कौन है जो अपने चलता हुआ राहगीर को कह सकता है कि भाई थूकना मना है? We all faced COVID, the lives went, इतने लोगों के घर बार खाली हो गए. कोई है जो थूकना मना पे काम करता है? आप सब कर सकते हैं. Ecowings ने ये एक मुहिम चलाई है कि आप चलते हुए राहगीर को जो थूक रहा है, आप उसको बोलिए कि नो स्पिटिंग. आपको पता है कि कफ कोल्ड कैसे होता है, आपको पता है वायरल कैसे होता है, तो हम सबका अधिकार बनता है कि हम उस पर काम करें. Then we come up to the medical waste. Working on medical waste. कोई है जो घर में
किसी के कि भाई सिरिंज है या डायपर्स है या जिन बड़े लोग हैं, तो अगर आपके घर में ये वेस्ट निकलता है, डायपर्स बच्चे के हो या बड़े के हो, हम उसको भी मेडिकल वेस्ट में काउंट करते हैं। सिरिंज है, सी मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि कूड़े वाले हम हैं, कूड़े में बहुत शॉर्ट में आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता रही हूँ इसीलिए कि कूड़े वाले हम हैं, कूड़े वाला वो नहीं है जो हमारा कूड़ा कलेक्ट करने आता है। So we are the garbage generator and it is our duty to segregate the medical waste that falls, आपके डायपर्स, घरों में बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, syringes, आपके wrappers of the medicines that we should keep in a different bag, आप अखबार में लगा दीजिए। और खतरे का निशान का रंग क्या होता है? एक बताते तो प्राइज मिल जाता, रेड। तो वी वर्क फॉर द रेड डॉट। आपने उस पे बिंदी लगा दी या बाथरूम में स्केच पेन रख लिया, प्लीज टेल योर फैमिली टू गिव इट सेपरेटली एंड दैट इज कॉल्ड रेड डॉट स्कीम। सो हमने नो स्टिकिंग पे चले, हम ईगो बिट पे चले, हम अपने रेड डॉट पे चले। नेक्स्ट वी कम अप टू द प्रोजेक्ट प्रक्रिया। मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ व्हाट वी आर वर्किंग एंड फॉर। हमने फूल उठाए मंदिर से, गुरुद्वारे से, आपके क्या बोलते हैं चर्च से, जहाँ भी फ्लावर मिलते हैं, मस्जिद से, इको विंग से, एमसीडी के साथ, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू वर्क इन दिल्ली ऑन प्रोजेक्ट प्रक्रिया। फूलों से खाद बन सकती है, प्लीज उसको कूड़े में डालने से मना करिए। अपने घर में भी पूजा होती है तो बोलिए घर वालों को कि उसको कूड़े में मिक्स ना करें। मंदिर, पार्क जो आपके एडजेसेंट पार्क, सबकी कॉलोनी में पार्क है, अगर आप उनको ऐसे तोड़ के डाल देंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। अभी जब बाढ़ आई थी दिल्ली में तो एक स्लोगन आया था, कोई मुझे बता सकता है? लाल किले के पीछे बहुत बड़ा बड़ा पेपर में आया था कि क्या आया था प्लास्टिक से रिलेटेड। जो हमने प्रकृति को दिया, प्रकृति ने हमें वापस दिया। आज सारे प्राइज लगता है धीरज को जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बोला। सो वी कैन गिव हिम टूथब्रश इफ वी हैव दैट इज मेड ऑफ बैम्बू। सो किस-किस को बैम्बू टूथब्रश के बारे में पता है? ओह वाओ, वंडरफुल। नीम को आजकल मार्केट में आ गए हैं, पर एट अ लिटिल हाई प्राइस। दिल्ली वाले पहाड़ों पे चिप्स के पैकेट छोड़ के आते हैं। थोड़ा सा इसमें ही लाइट This is the first wall. This is the first wall we have made in Delhi. ये हमने दिल्ली की पहली दीवार बनाई। इसको हमने रीपेंट कराया G20 में। कोई बात नहीं। फिर हमने डिप्सा यूनिवर्सिटी है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, वहाँ बनाया लोगों। ये एमसीडी को दिया और इसके बाद हमने फिर से एमसीडी को दिया। ये सब इको ब्रिक से बना है। इसके अंदर 900 बॉटल लगी है। सो वी हैव स्टॉप। हमने 900 घरों का कूड़ा प्लास्टिक भरा बोतलों में और उसकी ईंट बनाई और उससे हमने ये सेल्फी पॉइंट बनाया। हमने एमसीडी लिख के दिया, एमसीडी का अल्फाबेटिकली हमने बनाया और हमने एमसीडी को गिफ्ट किया। तो अगर मैं बोलूँ तो हमने 5 से 6 हजार घरों का कूड़ा रोका। स्कूलों में जो हमने बॉटल बनवाई वो हम उनको ही गिफ्ट कराए, जो उन्होंने अपने जो स्कूल के बड़े बड़े जो उनके ग्राउंड है उसमें पेड़ों के नीचे लगाए। अब यही एक उम्मीद है कि गिफ्ट्स के साथ हम ये प्रोजेक्ट करें और यहाँ पर जो भी मैम चाहेंगे, डायरेक्टर सर चाहेंगे, सेल्फी पॉइंट या अल्फाबेटिकली जो भी बनवाना चाहें, जिसमें आप सब बच्चों का योगदान जरूरी है। अब मैं जल्दी से 3-4 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। प्लास्टिक इन्वेंटेड, कुछ तो पढ़ के आए होंगे ना जब एक लेक्चर के बाहर। प्लास्टिक बहुत पुराना नहीं है। हमारे बड़े लोग पीतल की बाल्टी, स्टील की बाल्टी यूज करते थे। हमारे यहाँ पर, सॉरी, हाँ जोर से बोल दीजिए। 1907 the prize goes to her. अब उन्होंने, मुझे नहीं पता, she just checked it or she knew it about it. तालियां और प्राइज। What is the plastic made of? प्लास्टिक कैसे बनता है? पॉलिएस्टर। What is the दूर से, हाँ बोलिए। सिंथेटिक मटेरियल क्या है वो? आपको जो खड़े होकर बोलना
बोलना पड़ेगा। Students, the plastic is made of cellulose. sorry Polymers. fossil fuel. No, fossil fuel. जितना हम पेट्रोल और डीजल बनाएंगे उतना प्लास्टिक बनेगा। प्लीज गूगल आप क्या, जितना हमारी गाड़ियां चलेंगी, जितना हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में डीजल और पेट्रोल होगा उतना प्लास्टिक जनरेट होगा। मेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। ना हम गाड़ियां रोक सकते हैं, ना हम पेट्रोल रोक सकते हैं, ना हम डीजल रोक सकते हैं। सो एक ताली हमारे लिए इको विंग्स के लिए। कि अगर मैं आपको बोलूं दो लाइनों में मुझे बताइए कि सूखा और गीला कूड़ा क्या होता है, जो आप अपने मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। कि जो स्टूडेंट्स बीच में खड़े हैं, they can sit. I know you are coordinating the event, but पीछे वालों को दिखेगा। So अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको किसी छोटे बच्चे को बताना है या अपने घर में बड़ों से पूछना है, तो आप कैसे बोलेंगे कि सूखा कूड़ा क्या होता है, गीला कूड़ा क्या होता है? मैं वो तो इंग्लिश में हो गया ना, ओके बिल्कुल सही। और जो डिकम्पोज हो सकता है वो गीला। ओके मैं ऐसे बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी जो भगवान ने बनाया वो गीला कूड़ा, जो इंसान ने बनाया वो सूखा कूड़ा। मछली, अंडा, सब्जी, फल, एवरीथिंग इज गीला कूड़ा। गत्ता, मेटल, कांच, दैट इज सब कुछ। इट्स फॉर प्लास्टिक, it falls under सूखा कूड़ा। So what we give to the nature, the nature gives it back. अभी आप देखते होंगे इतनी इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही है कि पहाड़ों पर चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बॉटल, who generates? We generate. When we go there for holiday, we do this. If facts अगर मैं बोलूँ for the plastic, only 9% of the plastic is recycled. Believe me. किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि next time when we will do the questionnaire, we will be asking this. So only 2 million plastic bags are used every minute worldwide. आपको पता है, अगर मेरे से कोई बोले कि सबसे बड़ी कैंसरस चीज क्या है, कोई बता सकता है? हमारी जितने लाइफ में कैंसर किससे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है? प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक? विच प्लास्टिक? अब पीछे से जवाब चाहिए मुझे। विच प्लास्टिक? Students, we are not here for the lecture. We are here for the interaction. I don't give, I बोले चले गए। No, we want you to participate. Sorry? No. किसने बोला सिंगल यूज प्लास्टिक पीछे से? Yeah, the prize goes to her. And which is the best single use plastic? Best, I'm saying. Worst नहीं बोल रही हूँ। The worst single use plastic is what our vegetable vendors are giving us. जो सब्जी वाले जिसमें सब्जी देते हैं, वो सबसे खराब प्लास्टिक है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, और मेरे ख्याल से within 2 months आप सब लोग अपने आसपास थोड़ा देखेंगे तो पता चलेगा। I attended a conference on medical issues in Washington DC, and it was really very sad being there as Indian. Kindly listen, everyone, which is very important. They said India is going to have pandemic of cancer in coming 3 years. Since Indians are using plastic, single-use plastic, and सब्जी वाला जो प्लास्टिक दे रहा है, प्लीज अपनी फैमिली को बोलिए do not take that plastic. दो इश्यूज हैं। एक तो जो उसमें सब्जी आई उसने कैंसर जनरेट किया, नंबर 1। नंबर 2, that vegetable vendor is roaming on the road giving us vegetables. हम वो रोज का कम से कम 100 रुपए का प्लास्टिक खरीदता है हमारे लिए। महीने का 3000, साल का कितना बता दीजिए? 36,000। वो अगर आप उससे नहीं लोगे तो क्या होगा? वो अपने बच्चे की पढ़ाई में, वो अपने मेडिकल के लिए उसको यूज करेगा। So if we are carrying our cloth bag, अभी लोग बोलते हैं आलू प्याज गंदा होता है, keep the newspaper in the bag. आप आलू प्याज इसमें ले लीजिए,
और उसको रख लीजिए, कहाँ गंदा हुआ थैला, and it can be washed also. So you are saving your life, you are saving his money. So the concept is here. Believe me, when we talk about this, it is the concept. जो भी चीज हम करते हैं, पढ़ाई, सोना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज हियर. ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाती हूँ. एट टाइम्स 1 आवर के लिए रील में खो जाते हैं. But it is all here. The moment I have other activity to think, I forget Instagram. Is it true? I think it is true. आवाज ही नहीं आ रही है स्टूडेंट्स की. आज ब्रेकफास्ट नहीं किया लग रहा है. So 73% of plastic is littered at the beach. अगर हम बोले तो हमारे यहाँ पर मछली के पेट में भी प्लास्टिक है. एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसके पेट में भी प्लास्टिक है. और अभी तो थ्योरी आ गई है कि नमक और चीनी में भी प्लास्टिक है. स्टूडेंट्स आप भी बोल सकते हैं, I'll keep quiet for some time and you can say if you want to discuss with us. So 2.5 tons of carbon dioxide is generated with the plastic. Here we are working for the plastic. हम यहाँ जो आए हैं, can someone come with the plastic and start making with this? If we talk about microplastic, कोई मुझे बताएगा कि बिस्लेरी की बोतल से पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? आप एक तो आकर बोलिए, आजकल इतनी इंस्टाग्राम पे वीडियो उसके जो माइक्रोब्स है वो उसके अंदर आ गए. So the problem is not the Bisleri plant. The problem is that the water is contaminated under sun. आप हर दुकान के बाहर देखते हैं कि बोतलें बाहर पड़ी होती है पानी की. आप ट्रक में जो पानी आ रहा है वो कवर नहीं है, तो सूरज की किरणें उस पानी पे पड़ रही है और जो उस बॉटल के अंदर प्लास्टिक है वो उस पानी में मिल रहा है. That is why we are going towards cancer. हमारे पास रीजंस है कि अगर आप देखेंगे हर परिवार में, हर दोस्त के दूर में कहीं ना कहीं आज के टाइम में किसी एक फैमिली में किसी एक को कैंसर है. क्यों? क्योंकि हमने अपना जो रोज की दिनचर्या है उसमें प्लास्टिक को इतना ज्यादा ले लिया है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको कैसे हटाएं. इट्स अप टू यू. प्लीज माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स मत रखिए. आप कांच के बर्तन में गर्म करिए. प्लीज कोशिश करिए कि जो ये डिस्पोजेबल बॉटल्स है, कौन वाटर बॉटल कैरी करता है? वेरी गुड. जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए. I hope not the plastic bottles. Not the plastic bottles. Now, can someone tell me quickly? हाथ उठाएंगे. कोई एक जन बोलेगा बस. 3 hours. मैंने हाथ उठाने को कहा था, आपको प्राइस दे देते हैं. Reuse. एक और आ गया है. 4th hour भी आ गया. Repurpose. The price goes to अच्छा, आपने यहाँ क्यों किया? I thought the screen is light. अच्छा, how can we go organic with the waste? जो हमारा गीला सूखा कूड़ा है, हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक हो जाए उससे? कोई बोल रहा है, खड़े होकर बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा. Organic, I said organic. Wet waste के साथ, what can we do? हम उसको डिग करके लैंड के अंदर उसका कंपोस्ट पिट बना चाहते हैं. तालियां. आज हम सब कंपोस्ट पे जा रहे हैं. उसका रीजन है कि जो हमारा गीला कूड़ा है वो कहीं भी हम लैंडफिल पे सब भेज रहे हैं. देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन SSI, कूड़े वाला है कूड़ा निकाल, वो हमारे गीले कूड़े को बेच रहे हैं पर वो डंप भी कर रहे हैं. तो हम उसका पत्तों की खाद, आपके कॉलेज में मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा ग्राउंड है, नहीं तो हम उससे खाद यहाँ भी बना सकते हैं.
किसी को पता है? ब्लैक गोल्ड, मैन्योर तो हो ही गया, कंपोस्टर, पर मैंने आंसर भी दे दिया। ब्लैक गोल्ड जो हमारे घर के खाने, जो हम सब्जी फल निकालते हैं, उससे जो खाद बनती है वो ब्लैक गोल्ड कहलाता है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है that we have to mix it with the soil and then we can put it. We cannot put it directly. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब आज आप लोग इस प्रोजेक्ट पे आए हैं तो you should read all this also and which is very important आने वाले बच्चों के लिए। Can we start this? अभी कोई सवाल है आपके? So we have 4 categories: organic, recyclable, toxic and reject. So अगर मैं जल्दी से बोलूं तो रिजेक्शन में comes sanitary waste, टॉयलेट पेपर और मोस्ट हैजार्डस इज चिप्स। कोई मुझे बता सकता है, एक लास्ट सवाल, कि चिप्स के पैकेट हैजार्डस क्यों हैं? चिप्स के पैकेट, हाँ बोलिए। रिसाइकिल तो हो सकते हैं। सॉरी, मिठाई में नाइट्रोजन गैस करती है। अब मैं इसका बहुत सिंपल जवाब देती हूँ। आपके घर का कूड़ा निकला, उस रिक्शा में गया, वो रिक्शा में आपने मिक्स करके दिया, थैली में अलग नहीं दिया किसी ने भी, प्लास्टिक और गीला कूड़ा या और भी एनिमल फूड सबको डल जाता है उसमें। और वो प्लास्टिक छट कर जो हमारे रिसाइकलर्स हैं, जो हमारे कंसेशनर्स हैं, वो उसको मिल पे भेज देते हैं। जिस मिल पे वो गया, जहां उसको वापस पैकेट बनना है, उन्होंने उसको कोई धोया नहीं और उसको मशीनों में डाल दिया गंदा। उसमें केमिकल डाला, कलर चेंज हुआ और उसमें कलर्स ऐड हुए और वो वापस चिप्स भर के हमारे पास मार्केट में आ गए। सो इफ यू सी the most hazardous packet is chips ka packet, which we say no these days. I think one should understand this. Why we are here segregating the plastic? Why we say kindly segregate waste at source? At source means घर से छाटिए। Community अलग होता है, segregation आप सब जगह कर सकते हैं। प्लीज अपने घर में अपनी फैमिली को, आज अगर आप यहाँ बैठे और हमसे बातें कर रहे हैं, सो काइंडली डू दिस, टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। 4 घर लीजिए अपने पड़ोस के, उनसे बातें करिए अगर कर सकते हैं तो, और सबसे बोलिए कि सेग्रीगेट करके दीजिए, क्योंकि वही प्लास्टिक घूम फिर के कोई धोता नहीं है, कोई साफ नहीं होता और हमारी जिंदगी में वापस आता है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट गुड। Why we are going towards cancer? It is a bitter truth of our life. हम तो जी लिए, आने वाली जनरेशन को जीना है। I think it should be clear to everyone, and it is really sad. So let's make the eco bricks. What we have got the plastics. So this is. I think that things are very much clear for today. जोर से yes तो बोलना होगा। अभी हम ओथ भी लेंगे, not to use single-use plastic. दो 3 लोग आ सकते हैं। You can join. Everyone, please come. You can come and do it here. These are the ready. It has to be tied and sturdy. ये हम बना के लाए हैं, जिससे हमने दिल्ली की पहली दीवार बनाई, फिर हमने दूसरी दीवार बनाई, फिर हमने एमसीडी लोगो बनाया, क्यारियों में लगाया। तो आप इसको छू कर देख लीजिए और इसमें क्या क्या प्लास्टिक डला हुआ है वो भी देख लीजिए। अगर दूध की थैली डाल दे तो आप इसको पूरा छक लेते हैं। अगर दूध की थैली डाल दे वो भी सूखी और साफ होनी चाहिए। और everybody has to make it, then only the certificate will be issued to the students by EcoWings. EcoWings is a registered organization working in the field of Take your beta and this part. This is what I have created.
बॉटल में पानी नहीं होना चाहिए और आपने इसमें डालना शुरू किया। एक कोई मुझे बता सकते, लास्ट क्वेश्चन, कि एक बॉटल में कितने दिन का प्लास्टिक आ सकता है? एक बॉटल में कितने दिन का प्लास्टिक आ सकता है? मोर 10 दिन किसने बोला? प्राइस दे देते हैं 10 to 15 days। आपके इतने बड़े बड़े बैग चले जाएंगे इसके अंदर। Actually, it is an activity which everyone should do, and we will be giving you pens against it. And आप जैसा चाहेंगे, there are more students who can join. और जो गीला कूड़ा है वो सिर्फ आपने गार्बेज कलेक्टर को दिया, अगर आप कंपोस्ट नहीं कर रहे। So who all are going to make it? जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको तो बनानी पड़ेगी। किसी के भी हाथ नहीं उठे। Only 2, 3, 4, 5, मान लीजिए से 2 हाथ एक साथ आए। जो बना रहे हैं उनको नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। अभी गिफ्ट मिलेंगे उनको, जो यहाँ बना रहे हैं उन सब बच्चों को पेन मिलेंगे। Does anyone know singing? किसी को गाना आता है? जिंदगी बचाओ। I think everyone should stand and start singing क्योंकि बातों में पड़ता है। At least we will enjoy. अच्छा अभी फिर अटेंडेंस I think we will. मुस्कान में
रखिएगा। Everyone please, don't behave. Everyone please, I request. मैं अपनी आगे लाइफ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा और जितना भी कम से कम प्लास्टिक हम अपनी जिंदगी में कम कर सकते हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.